موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے۔ اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حقہ تیاری کر سکیں۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سون کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، نور انا اراہ، یعنی وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا
तो तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर जब उनके रब ने उस पर तजल्ली फरमाई तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी जात पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ हाथ की सबसे छोटी उंगली के पोरे के बराबर अपना नूर जाहिर फरमाया था। जिस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने तजल्ली फरमाई थी वो तूर पहाड़ के अलावा कोई और पहाड़ था। वो किस कदर अजीब और हौलनाक मंजर होगा कि इस दुनिया का एक अजीम और मजबूत पहाड़ बारी ताला के नूर की एक हल्की सी झलक बर्दाश्त न कर सका और रेजा रेजा हो गया और भुरभुरी रेत बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देख रहे थे। बहुत हैरत अंगेज और अजीब मंजर था। मजबूत पहाड़ हरकत में आया और रेजा रेजा हो गया। चुनाचे आप होशो हवास कायम न रख सके और बेहोश हो गए। होश में आए तो फौरन अपने सवाल पर शर्मिंदा हुए, गलती का एतराफ करते हुए मुआफी के तालिब हुए। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से तुम्हें तमाम लोगों पर इम्तियाज बख्शा है, तो जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है उसको थाम लो और शुक्रगुजारों में से हो जाओ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जमाने के तमाम लोगों से ज्यादा मर्तबा अता फरमाया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको तख्तियों में लिखी तौरात अता फरमाई। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 145 में फरमाते हैं, और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील उनको लिख कर दी। तुम उनको कुव्वत के साथ पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि उनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। अनकरीब मैं तुम लोगों को इन फासिकों का घर दिखलाऊंगा। ये तख्तियां किस चीज की थीं, इसके मुतालिक कोई मरफू बात साबित नहीं। अलबत्ता मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज कहते हैं ये तख्तियां जवाहिर की थी और बाज कहते हैं कि ये तख्तियां पत्थर की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिनों में तौरात के अंदर लिखे हुए अल्लाह के अहकामात अख्ज़ कर लिए। उधर मूसा अलैहिस्सलाम का उनकी कौम इंतजार कर रही थी। इस दौरान वो एक आजमाइश में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 85 में फरमाते हैं, फरमाया, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने बहका दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में वो एक शख्स की पैरवी करते हुए गुमराह हो गए और उनकी गुमराही का सबब बनने वाला शख्स सामरी था। अल्लाह से मुलाकात की मुद्दत पूरी करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने वाज़ो नसीहत से भरपूर तख्तियां उठा ली। उनमें अल्लाह के अहकामात भी थे और बनी इसराइल की शरीयत भी दर्ज थी। इसी को तौरात कहा जाता है। इनको उठाकर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट आए। इस मौके पर अल्लाह ताला सूरह तौहा आयत 86 में फरमाते हैं, बस मूसा निहायत गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे। कौम पर जब 30 दिन गुजर गए और हस्बे वादा मूसा अलैहिस्सलाम न लौटे तो वो गमगीन रहने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने उनको इकट्ठा किया और फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, जब तुम मिस्र से चले थे तो किप्तियों के पैसे और रकूम वगैरह हम में से बाज पर उधार थी। इसी तरह उनकी अमानतें भी तुम्हारे पास रह गई हैं। अब हम इन चीजों को उन्हें वापस तो कर नहीं सकते, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो हमारी मिल्कियत में रहें। इसलिए तुम एक गहरा गड्ढा खोदो और जो माल व असबाब, जेवरात और सोना चांदी वगैरह उनका तुम्हारे पास है इसमें डालो और आग लगा दो। चुनाचे इसी तरह किया गया। इस दौरान उनके साथ सामरी नामी एक शख्स था। ये था तो गाय के पुजारियों में से, लेकिन पड़ोसी होने के नाते से ये भी बनी इसराइल में शुमार होता था। इसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े को गुजरते हुए देखा और उसके कदमों के नीचे से मिट्टी उठा ली थी। हारून अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तू इसे फेंक दे। ये कहने लगा, ये तो वो चीज है जिसने तुम्हें दरिया पार करवाया है। मैं इसे इस शर्त पर डालने के लिए तैयार हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इससे वो बन जाए जो मैं चाहता हूँ। हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो कुदरत इलाही से उस गड्ढे में जो था वो ऐसे बछड़े की सूरत इख्तियार कर गया जो अंदर से खोखला था। उसमें रूह नहीं थी, लेकिन जब हवा उसके पीछे से दाखिल होकर मुंह से निकलती
तो एक आवाज पैदा हो जाती थी। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 86 में फरमाते हैं, बस मूसा सख्त नाराज होकर अफसोसनाक हालत में वापस लौटे और कहने लगे, ऐ मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा नहीं किया था? क्या उस वादे की मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही ये है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की है। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 10 दिन ताखीर से पहुंचे और इन दिनों ही में उन्होंने बछड़ा बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी। बल्कि सामिरी ने उनसे यहाँ तक कहा कि मूसा भूल कर चले गए, उनका माबूद भी यही बछड़ा है। जब वो आएंगे तो वो खुद भी इसी की इबादत करेंगे और हमारे साथ मिल जाएंगे। इस तरह उनमें से अक्सर ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। बस चंद अफराद इससे बाज रहे। उन्होंने सोचा इंतजार कर लेते हैं। वो 30 दिन का वादा करके गए थे, कुछ जायद दिन लग गए तो इसकी कोई खास वजह होगी, क्योंकि अल्लाह का नबी वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन कोई खास वजह है और मुमकिन है सामिरी भी हक पर हो, फिर भी इंतजार बेहतर है। इस तरह वो ठहरे रहे, ताहम उनमें पूरी बसीरत और यकीन के साथ सामिरी को झूठा समझने वाला, उसके पीछे न लगने वाला और हक को समझने वाला सिवाय हारून अलैहिस्सलाम और चंद गिने चुने अफराद के और कोई नहीं था। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने निहायत गुस्से और अफसोस के साथ उनसे कहा कि तुम 10 दिन की ताखीर बर्दाश्त न कर सके। क्या अल्लाह के गजब का शिकार होना चाहते हो कि मेरी खिलाफ वर्जी कर रहे हो? उन्होंने इस बात का जो जवाब दिया वो सूरह ताहा आयत 87 और 88 में आया है। कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे का खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर कौम के जो जेवरात लाद दिए गए थे उनको हमने डाल दिया, और इसी तरह सामिरी ने भी डाल दिए। फिर उसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत बना डाला। उसमें से गाय जैसी आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गए हैं। अल्लाह ताला इस मौके पर बछड़े के बारे में फरमाते हैं, क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और न उनके किसी बुरे भले का इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों ने किस कदर बेवकूफी का काम किया है। वो बछड़ा जो उनकी बातों का जवाब तक नहीं दे सकता था और किसी किस्म के नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता था, वो सिर्फ उसकी आवाज सुनकर उसकी पूजा पर बजिद हो गए। हारून अलैहिस्सलाम उनको रोकते रहे और अल्लाह की तरफ दावत देते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो बछड़ा परस्ती पर इसरार करते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि ऐ मेरी कौम, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है। तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान ही है, लिहाजा तुम सब मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा की वापसी तक तो हम इसी के मुजाविर बने बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखा तो अपने भाई हारून पर बिगड़े, उनके सर के बालों और दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे। उनकी तबीयत में सख्ती थी, जबकि हारून अलैहिस्सलाम बहुत नर्म मिजाज थे। हारून अलैहिस्सलाम उनसे बहुत नर्म बर्ताव करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने मेरे साथ किए हुए वादे को क्यों नहीं निभाया और इन लोगों की इस्लाह क्यों न की? हारून ने कहा, ऐ मेरे मान जाए भाई, मेरी दाढ़ी न पकड़ और सर के बाल न खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये न फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरीका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार न किया। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं डर गया और इनमें ठहरा रहा और इनसे कहता रहा कि जो शख्स अल्लाह के साथ ईमान और मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का ख्वाहिशमंद हो वो मेरी पैरवी करे। मैं आपके पास न आया और इनके पास क्यों ठहरा रहा? सिर्फ इसलिए कि अगर मैं आपके पास आता तो बनी इसराइल 2 फिरकों में बंट जाते। एक गिरोह इनमें से बछड़े की पूजा कर रहा होता और दूसरा मेरे साथ आपके पास आ जाता। तो आप मुझ पर कहीं ये एतराज न करते कि तूने बनी इसराइल को फिरका फिरका कर दिया और मेरे अहकामात का इंतजार न किया और पहले ही भाग आया। सूरतुल आराफ आयत 150 में है। और मूसा ने तौरात की तख्तियां फेंक दी
اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو اے میرے بھائی، اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔